हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। और आज हमारे साथ है ऑल इंडिया रैंक वन ब्रह्मार जैन। सो ब्रह्मार, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग आवर इनविटेशन एंड कमिंग ऑन द चैनल। Thank you so much, Diman. I'm excited to be here. सो ब्रह्मार, मैं आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछूंगा कि आपको ऑल इंडिया रैंक वन लाके कैसा लगा। आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन कि ऑल इंडिया रैंक वन के बाद लाइफ कैसे चेंज हुई। Like, obviously, it changes drastically from the moment the result comes. So basically, all this time I've been busy with interviews and like सबका call आता है, like it feels very great. मतलब जब even those person call ना जिनके साथ आपका बहुत पहले connection था और फिर वो याद करते हैं, अच्छा तुम तो वही थे ना जिनसे ये बात हुई थी, and they connect with you. मतलब that feeling is great. मतलब being proud से ज़्यादा तब ज़्यादा मजा आती है जब these all sort of people from your all phases of life जब उनका call आता है. So definitely it has been amazing. The past few days has been amazing. एंड ब्रह्मार, बहुत स्टूडेंट्स को मतलब बहुत लोगों को लगता है कि ऑल इंडिया रैंक वन आने के बाद बहुत सारी कंपनीज आपको रीच आउट करना स्टार्ट कर देती है। तो ऐसा कुछ हो रहा है या फिर? Basically, it's 10 days, I believe, after results have come out. So, two, three companies have approached me. Okay, So, personally. as in, one placement agency approached me and one company approached me. But still, yeah, मतलब अभी तक आने बचे हैं. मैंने पता किया था तो like they take some time to क्या बोलते हैं approach you. Yeah. Okay, so Pramar, let's start from your initial journey. ये सीए जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? क्या मतलब क्या रीजन था सीए जर्नी स्टार्ट करने का? How it all started for you? Okay, so basically, I come from a CA background. मतलब my father is a chartered accountant, my brother is a chartered accountant, and my sister-in-law is also a chartered accountant. Okay, family of chartered accountants. Right, so we are basically a chartered accountant factory. So शुरुआत से पापा को ही देखा था, and like 10th में we used to decide. I'm from CBSE board, so 10th में we have to make a decision on which stream to choose. So at that time my mindset was such that कि मुझे job नहीं करनी थी. As in I wanted to be independent and a self-made man. मतलब किसी के अंडर काम नहीं करना था. And कहीं ना कहीं पापा को देखा था मैंने कि how he used to work, how he used to take leave. मतलब he was boss of his own. मतलब he used to work when he wanted. So कहीं ना कहीं पापा को देख के, फैमिली को देख के, being of the thought कि मुझे खुद से काम करना, खुद के लिए काम करना है. So then मैंने decide किया कि yes, so CA is the best thing for that. But if you want to be independent, I think CA is the best profession for that. So that was the thinking with which I joined CA. So 10th में मैंने commerce लिया, and then 12th के बाद CPT, IPCC and this. So but basically हुआ क्या कि journey के दौरान my perception changed. For articleship I went to TR Chadda and Company Delhi. तो उधर मेरा direct taxation profile था. So I had an awesome experience there. मतलब लोग जनरली लोग बोलते हैं corporate culture like you are harassed and मतलब पॉलिटिक्स होती है, ये वो बस काम करो, दूसरे काम करो. बट आई हैड एन अमेजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस, फीलिंग एवरीथिंग. मतलब तो बहुत ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था. तो समवेयर उधर से मेरा परसेप्शन अभी थोड़ा चेंज हुआ है. तो बट दैट वाज माय रीजन व्हाई आई चोज चार्टर्ड अकाउंटेंट. So Bramar, how the journey really unfolded for you? You even got a rank in IPCC. Yeah. So basically I did all my studies of CA from my hometown Raipur, Chhattisgarh itself. Okay. So CPT तो like हमारे टाइम CPT होता था, मतलब CA फाउंडेशन नहीं होता था. And I chose commerce with maths. So CPT was like a click of a finger. ये तो देना ही है. वो तो तुरंत 2 months के बाद क्रैक हो गया था. तो उसके बाद what I did was I joined a coaching institute in Raipur itself. So the all subjects were taught under one roof. So that was a मतलब altogether different phase. मतलब हम घर आते थे सिर्फ सोने के लिए. तो ऐसा था. तो उस टाइम इतना कॉन्शियस आई वाजंट दैट कॉन्शियस कि मुझे रैंक लाना है या समथिंग. आई यूज्ड टू स्टडी, एंजॉय, डू एवरीथिंग, एंड रैंक आ गया. so it was quite unexpected, really unexpected at time. आईपीसीसी में तो लाइक जब ऑल इंडिया रैंक आता है तो फैमिली वालों को तो बिलीव ही नहीं हो रहा था इसका कैसे आ गया. so फिर उसके बाद then I went on to for articleship in Delhi, but due to some circumstances I had to come back to Raipur after almost 7 to 8 months. And then I did here articleship. Rest of the articleship I did from Jan and Prasad and Company in Raipur itself. And then 6 months KPL, then COVID, then exams, then okay. So Bramar, how you started planning for after IPCC? मतलब आपकी single digit rank IPCC में भी और final में भी.
और देखा गया ऐसा जिसकी सिंगल डिजिट रैंक आती है बहुत ही अच्छे तरीके से प्लान करता है अपने पूरे स्टडीज को। सो हाउ यू रियली प्लान आफ्टर आईपीसी कि मुझे कोचिंग कैसे लेना है, एक बार आप पूरा ब्रीफ बता पाओ हमारे ऑडियंस को। ओके, सो बेसिकली जैसे मैंने बताया कि मेरा एम था, लाइक मेरा जॉब एम था ही नहीं कभी। ओके, सो मैंने बिग फोर्स में अप्लाई किया ही नहीं था। इवन आफ्टर सिंगल डिजिट रैंक आने के बाद आई वाज वेरी क्लियर कि मुझे बिग फोर्स में अप्लाई नहीं करना, बिकॉज बेसिकली उनका मोर फोकस स्पेशलाइजेशन पे रहता है। दैट वाज व्हाट आई यूज्ड टू थॉट एट दैट टाइम। स्पेशलाइजेशन में रहता है तो आई वुड नॉट बी एबल टू ओपन अप टू द होल इंडस्ट्री। सो आउटराइटली बिग फोर तो रिजेक्टेड था। एंड देन आई प्लान्ड कि अभी इनिशियल स्टेज में लाइक 7 to 8 months तो मुझे बस ग्रिल करना है काम में। मतलब मुझे ऐसी कंपनी चाहिए थी जो मुझे ग्रिल करे काम पे, बट नॉट इन जस्ट वन डिपार्टमेंट, इन एवरी डिपार्टमेंट। तो मेरा ये फोकस एकदम क्लियर था कि मुझे 7-8 महीने बस लगन ला के एकदम काम सीखना है। सो व्हाट आई डिड वाज जॉइन टिया चड्डा इन कंपनी। तो उधर मैंने सिर्फ काम पे फोकस किया। आई डिड नॉट टेक एनी क्लासेस। उस टाइम तो मुझे पता भी नहीं था, मतलब प्रवीण शर्मा सर है, नीरज अरोड़ा सर है, मतलब सर लोग के नाम तक नहीं पते थे उस टाइम। तो आफ्टर 7-8 months उसके बाद फिर मैं जब रायपुर आया तो तब देखा कि लाइक पीपल हैव स्टार्टेड टेकिंग क्लासेस। सो देन आई मतलब मैंने थोड़ा रिसर्च किया। तो आई प्लान्ड कि मुझे लास्ट के 6 months पीएल में चाहिए, एज इन 6 months में रखूंगा अपनी सेल्फ स्टडी के लिए, और 6 months तक मेरी सारी क्लासेस खत्म हो जानी चाहिए। तो दिस वाज माय बेसिक प्लानिंग। और मुझे कभी भी ऐसा लग, पहले तो मैंने सोचा था कि सिंगल सिंगल क्लासेस लूंगा सारे, फिर लेकिन और पता किया तो पता चला कि नहीं, देयर आर सम सब्जेक्ट्स लाइक डीटी हो गया, आईडीटी हो गया, तो इसको आप लास्ट लास्ट में लो तो उससे ज्यादा बेटरमेंट होता है। लाइक अमेंडमेंट्स वगैरह डायरेक्ट क्लासेस के साथ ही कवर हो जाते हैं, वरना खुद से और मेहनत करनी पड़ती है। तो व्हाट आई प्लान वाज कि मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स मैं सिंगल सिंगल लूंगा, मतलब एक क्लास वन एट अ टाइम ऑफिस के साथ, सुबह या शाम जैसे भी। और लास्ट में मैंने डीटी आईडीटी साथ में ली। तो ऑल थिंग्स वेंट अकॉर्डिंग टू माई प्लान। बट मेरा एमसीएस छूट गया था। सो ड्यूरिंग दिस 6 months, तो उसमें से नवंबर में मेरा लाइक ऑलमोस्ट 22 नवंबर तक मेरा एमसीएस चला था। सो 22 नवंबर तक मेरी सारी क्लासेस खत्म हो गई थी। सो आई ऑलमोस्ट गॉट 5.5 months फॉर सेल्फ स्टडी। सो दिस वाज माय बेसिक प्लान। एंड विमाल एंड एक अगर और चीज सब्जेक्ट, लाइक आई, यस श्योर कंटिन्यू। हाँ, सो एंड बेसिकली मेरा जो दो सब्जेक्ट्स होते हैं, लॉ एंड ऑडिट के लिए मेरा शुरुआत से ये फोकस था कि आई हैड टू टेक ऑफलाइन क्लासेस फॉर लॉ एंड ऑडिट, बिकॉज उसमें यूजुअली ऑनलाइन में लाइक बस एक्सप्लेन होता है, लर्निंग नहीं होती, उतनी एंगेजमेंट नहीं होती है। तो लॉ एंड ऑडिट को मैंने आई हैड स्पेशल फोकस कि हाँ मुझे ऑफलाइन क्लासेस के लिए तो अलग से प्रोविजन रखना है उसका। एंड विमाल डिड यू प्रेफर दोस पेन ड्राइव क्लासेस या फिर ऑफलाइन जाके क्लासेस किया था सभी? ना 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 ना, मतलब माय फ्रेंड्स, शुरुआत में तो उतना हमारे टाइम पे पेन ड्राइव क्लासेस का उतना क्रेज भी नहीं था ना। अभी ज्यादा आफ्टर कोविड एंड दिस पेन ड्राइव क्लासेस ज्यादा है। हमारे टाइम पे सेंटर्स ही ज्यादा होते थे, लाइक ऑफलाइन क्लासेस या फिर सेंटर वाली क्लासेस, ऐसे सैटेलाइट क्लासेस जहाँ टीचर लोग पढ़ाते हैं ऑनलाइन, है ना। तो लेकिन जब एंड मैच रहे तो आईडीटी की क्लासेस मैंने ली थी विशाल भट्टर सर से। तो उनकी सारी क्लासेस मोस्ट ऑफ द पीपल मतलब पेन ड्राइव से लेते हैं। बट आई वाज लाइक मैं ले ही नहीं सकता अकेले क्लासेस, एक रूम में बैठ के अकेले पेन ड्राइव में। मैं तो हाँ देख रहा हूँ थोड़ी देर फिर उठ जाऊंगा। मतलब आई आई कांट स्टडी अलोन। मतलब मैं खुद से एकदम सिंसियर होके सिंसियरली नहीं पढ़ सकता। तो पेन ड्राइव क्लासेस आर नॉट मेड फॉर मी एट ऑल। काफी रिलेटेबल है। Yes. So, Vimal, talking about subject wise strategy, how you approached, अगर आप थोड़ा सा क्विक स्नैपशॉट में बता पाओ एफआर कैसे अप्रोच किया, सिस्टम कैसे किया, एक छोटा क्विक स्नैपशॉट। ओके, सो बेसिकली एफआर आई मैंने बहुत पहले ली थी क्लासेस। तो एफआर की मैंने जब क्लासेस ली थी उसके साथ थोड़ा बहुत पढ़ता था। तब तो आर्टिकलशिप में ज्यादा फोकस था, तो घर में आके पढ़ तो नहीं पाता था। लेकिन आई यूज्ड टू मेक श्योर कि जो भी क्लास में पढ़ा रहे हैं मेरा कंसेप्ट एकदम क्लियर है। कंसेप्ट क्लियर नहीं भी होता था तो अगले दिन आके फ्रेंड से डिस्कस करो, कुछ भी करो, लेकिन कंसेप्ट क्लियर कर लो। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि वो टॉपिक निकल गई और तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर नहीं। आई डिड यूज्ड टू फोकस ऑन लर्निंग या मेकिंग नोट्स या समथिंग। बस जो क्लास में कराया वो करता था एंड दैट्स इट। फिर आर्टिकलशिप पे फोकस करता था। सो कमिंग टू पीएल, एफआर पूरा वॉश आउट हो जाता है। तो व्हाट आई डिड वाज कि मैंने सारे चैप्टर्स जब पढ़े तो उसके नोट्स बनाने चालू किए फर्स्ट रिवीजन में। सो आई मेड वेरी कंप्रहेंसिव नोट्स ऑफ एफआर। ऐसे नोट्स बनाए कि मुझे नोट्स वापस अपने क्लास नोटबुक से ना पढ़ना पड़े। तो फर्स्ट रीडिंग में मैंने ये किया था। एंड ऑब्वियसली यू गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस एंड स्टडी मैट इज लाइक आउट ऑफ ऑल द 8 सब्जेक्ट्स द स्टडी मैट ऑफ एफआर इज ट्रूली ब्रिलियंट एंड ऑसम। और हमारे टाइम पे लाइक काफी सारे अमेंडमेंट्स भी आए थे स्टडी मैट में और बहुत सारी चीजें सुधर गई थी। तो लाइक आई रियली लाइक द स्टडी मटेरियल ऑफ एफआर। So I made sure to go through with that. You And made this notes Brahma in the starting or like end 6 months में ये notes बनाया था? एंड 6 months on, मतलब इट्स नॉट क्वाइट पॉसिबल। मतलब ऑब्वियसली अगर आप क्लासेस के साथ बनाए तो इट इज मोर देन आइडियल, बट उस टाइम बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मतलब आप ऐसा तो कर नहीं सकते कि जैसे कोई एक टॉपिक चल रहा है, बिजनेस कॉम्बिनेशन चल रहा है, तो
उसकी 10 क्लासेस इट स्पैन्स ओवर पीरियड ऑफ 10 क्लासेस। तो आप फर्स्ट क्लास के बाद नोट्स बनाना चालू नहीं कर सकते क्योंकि आपको पता ही नहीं आगे क्या पढ़ने वाला है। तो यू ओनली आफ्टर कंप्लीटिंग वन टॉपिक यू आर इन अ पोजीशन टू मेक नोट्स ऑफ इट, क्योंकि आपको कंसाइज करना है उसको, मतलब समराइज करना है और ओवरऑल नोट्स बनाने हैं आपको। तो आप कर सकते हैं क्लासेस के साथ वो, अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालते हैं तो लेकिन फर्स्ट रिवीजन में करना इज आई थिंक बेस्ट, क्योंकि उसके पास उस टाइम तक आप सारे क्वेश्चंस कर चुके होते हैं, सारे मटेरियल से कर चुके होते हैं, आपको पता होता है कि टॉपिक में क्या है और मुझे कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या रिलेवेंट है, किस चीज के नोट्स बनने चाहिए। तो मैंने वो 6 मंथ्स में ही सारे समरीज बनाए थे। Now coming on फर्स्ट SFM. या सो एसएफएम, तो आई बिलीव कि for this subject you should definitely take some classes because it is a brand new subject in final। IPCC में इसका कुछ Yeah. टच नहीं रहता है और काफी सारे नए टेक्निकल टॉपिक्स होते हैं। यू कैन सेल्फ स्टडी, लेकिन काफी ज्यादा एफर्ट्स लगेगी। तो आई टुक क्लासेस ऑफ इट फ्रॉम संजय सराफ सर। तो क्लासेस में तो सारे कंसेप्ट क्लियर होते ही थे, सर करवा देते थे। एंड ऑलमोस्ट सेम स्ट्रेटेजी थी एफआर टाइप, मतलब फर्स्ट रीडिंग में मैंने एसएफएम के भी नोट्स बना लिए थे। एंड एसएफएम कहीं ना कहीं थोड़ा सा छोटा सा सब्जेक्ट है, तो इसको अगर आप स्ट्रॉन्ग कर लोगे ना, तो सेकंड थर्ड रिवीजन में आपका ये मतलब बहुत अच्छा लगता है कि अरे हाँ एसएफएम आ गया, अब आराम मिलेगा थोड़ा। ग्रुप 1 में सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस SFM पे रहता है मेनली स्टूडेंट्स का। हाँ यस, लेकिन मेरा एफआर में ज्यादा था अच्छा। बिकॉज ऑफ द नोट्स। हाँ लेकिन एसएफएम वही छोटा सा सब्जेक्ट था, मतलब फर्स्ट रीडिंग आई थिंक कि 10 डेज में आपकी कंप्लीट हो जाएगी एक्सेप्ट थियरी, और थियरी आपकी 1 डे में हो जाएगी। एसएफएम को छोटा ऑलरेडी सब्जेक्ट है, और छोटा कर लोगे तो इट विल बिकम योर बेस्ट फ्रेंड। तो मेरा वही समराइजेशन अप्रोच था। एंड व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज एसएफएम में इट्स नॉट लाइक एफआर या कॉस्टिंग कि जिसमें काफी ज्यादा फॉर्मेट हो या और समथिंग। तो आई यूज्ड टू सॉल्व एवरी क्वेश्चन इन कैलकुलेटर, और उसमें टाइम नहीं लगता, मतलब क्वेश्चन रखो, कैलकुलेटर दबाओ, ऐसे करके मैं सारे प्रैक्टिस करता था। इनफैक्ट इवन ड्यूरिंग एग्जाम, मतलब जो 1.5 डेज होते हैं, उसमें भी मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस वापस देखे थे। मतलब ऑब्वियसली बहुत इजी क्वेश्चंस तो छोड़ देते हैं आप, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस थे या यूनिक क्वेश्चंस थे वो ऑलमोस्ट सारे ही मैंने देखे थे। एंड इट इज क्वाइट पॉसिबल टू डू दैट इन एसएफएम बिकॉज थोड़ा सा लोअर कोर्स लिमिटेड है। नाउअडेज इंस्टीट्यूट है स्टार्टिंग एक्सपैंडिंग इट्स, मतलब नए टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको पूरी दुनिया के सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो यू कैन टैकल दोस न्यू क्वेश्चंस एज वेल। Yeah. And then coming on law and audit. Law audit आपके साथ ऑफलाइन क्लासेस लिया था? या लॉ एंड ऑडिट मैंने ऑफलाइन क्लासेस लिया था। तो उसमें क्या होता था बेसिकली, ब्रेक के पहले सर लॉ पढ़ाते थे और ब्रेक के बाद सर ऑडिट पढ़ाते थे। अच्छा। एंड लॉ एंड ऑडिट में ऐसा था कि हमारा क्लोज ग्रुप था, मतलब मेरा जो पर्सनल फ्रेंड ग्रुप है, फ्रेंड सर्कल है, हम लोग भी वही 10-12 लोग पढ़ते थे। तो लॉ एंड ऑडिट क्लासेस वर टू मच फन और उसमें हमारी क्लास की अप्रोच ऐसी थी कि सर एक दिन जो पढ़ाते थे अगले दिन आके पूछते थे तुरंत, शुरुआत में खड़ा खड़ा करके, और वीकली टेस्ट वगैरह भी होते थे। तो लॉ एंड ऑडिट वाज द ओनली सब्जेक्ट जो मेरे पीएल के पहले प्रिपेयर्ड था, ऐसे मतलब थोड़ा सा सेल्फ स्टडी स्टाइल, थोड़ा लर्न वन किया हुआ है थोड़ा सा, है ना। तो उससे काफी ज्यादा फायदा हुआ और उसी में सिर्फ मेरी राइटिंग प्रैक्टिस शुरुआत से थी। तो एंड क्लासेस में वी यूज्ड टू मेक एक्सटेंसिव यूज ऑफ नेमोनिक्स, मतलब अड़ंग बड़ंग कहानी बना रहे हैं शॉर्टकट्स बना रहे हैं, तो उससे भी बहुत ज्यादा हेल्प मिली थी। तो पीएल में तो लाइक लॉ में हमारे पास समरी थी एक, तो सब आई यूज्ड टू रेफर समरी एंड रिफाइन इट। मतलब यूजुअली आई बिलीव कि समरीज जो होती है ना वो आपकी खुद की होनी चाहिए, और अगर आप किसी और के रेफर करते हैं तो उसको खुद का बना लो, एज इन एडिट इट, रिफाइन इट, कट इट, ऐड रिलेवेंट पॉइंट, डिलीट इररिलेवेंट पॉइंट्स, लेकिन वो लगनी चाहिए कि हाँ वो तुम्हारा मटेरियल है, बिकॉज तुम्हारे मटेरियल से ही तुम्हें पढ़ने का मन करता है। तो लॉ की समरी को मैंने वैसे किया था। एंड ऑडिट तो लाइक कहीं ना कहीं मैंने आईपीसीसी में लाइक एसेस हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, तो एसेस की मेरी स्ट्रॉन्ग बैकिंग थी शुरुआत से। तो एसेस में मैं समरी वगैरह प्रेफर नहीं करता था, पूरा गो थ्रू करता था एंड आई यूज्ड टू एंजॉय इट। और बाकी सब जो चैप्टर्स हो गए अपने ऑडिट ऑफ बैंक्स वगैरह, उसके थोड़े मैंने नोट्स वगैरह बनाए। और नाउ कमिंग ऑन ग्रुप 2 आईडीटी डीटी कॉस्टिंग। या तो आई बिलीव बस कॉस्टिंग में भी मेरी वही अप्रोच रही थी। अच्छा मैं सारे स्ट्रेटजी में बस वही बोल रहा हूँ, मैं समरी बनाता था। तो दैट वाज माय बेसिक अप्रोच, है ना। फर्स्ट रीडिंग में समरी बनाओ एंड सेकंड थर्ड रीडिंग में कॉस्टिंग यू डिड इट फ्रॉम स्टडी मैट? हाँ मतलब मैंने राकेश अग्रवाल सर से क्लासेस ली थी, तो उनकी बुक जो थी ना वो डिट्टो पेस्ट थी स्टडी मटेरियल की, बट कुछ कुछ टॉपिक्स मिसिंग थे, वो तो ठीक है मैंने स्टडी मैट से वापस देख लिया था, लेकिन इट वाज ऑलमोस्ट डिट्टो कॉपी पेस्ट ऑफ स्टडी मैट। तो यू कैन से आई डिड कॉस्टिंग फ्रॉम स्टडी मैट, बल्कि स्टडी मैट वाज थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा तो मुझे वो भी करना पड़ा था। एंड डीटी आईडीटी क्लासेस ली थी आपने? हाँ डीटी तो मैंने बहुत करना सर्च लिखी, तो उसमें मेरे सेल्फ एफर्ट्स काफी कम थे, मतलब सर के गाइडेंस के हिसाब से मैंने किया था सब कुछ। उसकी इनफैक्ट सबमरीज भी मैंने ज्यादा नहीं बनाई थी, आई रेफर्ड सर्च कॉम्पैक्ट एंड ऑल।
एंड डीटी में असल में मेरा प्रैक्टिस भी था, लाइक टीआर चड्डा में मेरा टैक्सेशन ही प्रोफाइल था और जैन प्रसाद एंड कंपनी में भी मेरा डीटी था, तो डीटी में बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल एक्सपोजर था. एंड आईडीटी तो वाज लाइक सेकंड ग्रुप का फेवरेट सब्जेक्ट. एंड माय ब्रदर इज आल्सो स्पेशलिस्ट इन जीएसटी, मतलब ही हैज इवन रिटन अ बुक ऑन इट एंड ही यूज्ड टू टेक क्लासेस ऑन जीएसटी. तो उसके भी कुछ वीडियोस वगैरह देखे थे. तो आईडीटी में आई वाज वेरी कंफर्टेबल, तो उसमें कुछ स्पेशल एफर्ट्स लगे नहीं. बट आईडीटी की मैंने सारी समरी बनाए थे, नोट्स बनाए. एंड एक्स्ट्रा में आपने क्या लिया था इलेक्टिव सब्जेक्ट? इलेक्टिव में मैंने लिया था इकोनॉमिक लॉस. मतलब बेसिकली मेरे पास दो ऑप्शन थे. आई यूज्ड टू बिलीव कि ओपन बुक लेना है तो काम तब भी आएगा जब थियरी पेपर हो. तो आई वाज क्लियर कि मुझे जो सब्जेक्ट लेना है वो थियरी सब्जेक्ट लेना है, प्रैक्टिकल में तो कुछ भी पूछ देंगे. दिस वाज माय थिंकिंग एट दैट टाइम, है ना. अभी थोड़ी बदल गई है ना. तो रिस्क मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक लॉ, इसमें से मेरे को चूज करना था. So I chose economic law because I had an interest in law. That was the only consideration. Otherwise, I considered both the subject at par. So I chose economic law और वो मैंने self किया था. मतलब ऐसे एक फ्रेंड के साथ पढ़ा था, तो हमने 2-3 दिन में कवर कर लिया था फर्स्ट रीडिंग. एंड उसके बाद फिर आरटीपीज आरटीपीज तो होती नहीं है, इंस्टीट्यूट की एमटीपीज केस स्टडीज कंपाइल करके उसी से स्टडी की थी. एंड प्रमाद, मैंने एक इंटरव्यू देखा था, उसमें आपने एक चीज बताया था, आर्टिकलशिप ने आपको बहुत हेल्प किया सब्जेक्ट्स लाइक डीटी में या फिर पीएफआर वगैरह में. तो एक बार आप वो बताना चाहो कि आर्टिकलशिप करना क्यों इतना इम्पोर्टेंट है एग्जाम ओरिएंटेड? एग्जाम ओरिएंटेड, ओके. तो बेसिकली वही जैसे मैंने आपको अभी भी बताया था कि डीटी में आई वाज वेरी मच कंफर्टेबल. क्यों? बिकॉज मेरा प्रोफाइल डीटी था. टीआर चड्डा में तो पूरा प्रोफाइल डीटी था और जैन प्रसाद में मैंने डीटी का काफी काम किया था. तो व्हाट हैपेंस है, जब आप पढ़ने आते हो, मतलब जब पढ़ाई करते हो और कोई ना कोई टॉपिक ऐसी आती है व्हिच इज लिंक्ड टू योर आर्टिकलशिप एक्सपोजर, तो एक अलग लेवल ऑफ एक्साइटमेंट आती है, अलग लेवल ऑफ स्पार्क आती है. मतलब ऐसा लगता है कि हाँ तुम सर से क्या पढ़ रहे हो, मेरे से पढ़ो, मेरे से पूछो, मैं बताता हूँ तुम्हें, ये तो सर आधा बताया है तुम्हें. तो जब आप किसी चीज में काम किए होते हो और उसी की थ्योरी पढ़ते हो ना, तो ऑब्वियसली वो तो आपको लाइक पढ़ना ही नहीं पड़ता है. So that helps a lot, obviously. And apart from studies, also articleship is like mandatory. मतलब a CA without a good articleship experience is, I believe, nothing. So articleship is very important as far as other than studies are concerned. And studies में भी काफी ज़्यादा help मिलती है articleship से. So Brahma, you got single digit ranks in IPCC and panel board. तो आपको क्या लगता है, आपने ऐसा क्या डिफरेंट किया बाकी स्टूडेंट से जो आपको सिंगल डिजिट रैंक्स लाने में हेल्प किया? आई थिंक डिफरेंट नहीं करना पड़ता कुछ स्टूडेंट से, सबको पढ़ना ही पड़ता है. अप्रोच में अगर मैं इंट्रोस्पेक्ट करूँ तो डिफरेंट, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने समरीज तो आई बिलीव क्लियर कर ही दिया है. आई थिंक समरीज हेल्प मी अ लॉट. आईपीसीसी में भी ये करता था. एंड सेकंड थिंग आई वुड से इज कि जब मैं क्लासेस लेता था ना, तो मैंने यूज्ड टू मेक नोट्स. मतलब सर जो लिखाते हैं वो तो नोट्स लिखना ही पड़ता है. सो आई यूज्ड टू मतलब अलग अलग तरह की पेन से मैं लिखता था. मतलब भले ही थोड़ा कम ध्यान जा रहा है क्लास में, लेकिन आई यूज्ड टू मेक श्योर कि जैसे कि एक लाइन आ गई आपको, दिस इज समथिंग एंड एक्स एंड वाई, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट वर्ड है या जो फ्रेज है उसको मुझे डिफरेंट कलर की पेन से लिखने में फोकस रहता था. तो वो करने से ऑटोमेटिकली मेरा क्लास में कंसंट्रेशन बढ़ता था. तो एज एन नोट्स पे इंटरेस्टिंग बन जाता है. एग्जैक्टली, नोट्स तो इंटरेस्टिंग बनते ही थे, नो डाउट. नोट्स तो अच्छे लगेंगे, वो आपको बाद में पढ़ने का मन करेगा ही. लेकिन वो नोट्स बनाने के, वो अच्छे नोट्स बनाने के चक्कर में आपका क्लास पे कंसंट्रेशन बनता है. समवेयर आई बिलीव कि माय मेन फोकस वाज कि मेरा क्लास में कंसंट्रेशन 100% रहता था. ट्रूली स्पीकिंग मैं क्लास के बाद आके नहीं पढ़ता था, है ना. मतलब पीएल में मेरी सेल्फ स्टडी हुई थी, लेकिन ऑब्वियसली यू शुड स्टडी आफ्टर क्लासेस. लेकिन क्योंकि मेरा 100% कंसंट्रेशन था क्लासेस में, एंड ड्यूरिंग पीएल दैट स्पेसिफिक अप्रोच ऑफ मेकिंग समरीज, so I think this too can be considered a different factor that helped me secure single digit ranks. Yeah. And even Prabha, I think जो last 6 months होते हैं वो आपका mainly make or break होता है. आप कितने revisions करते हो, कितने अच्छे से approach करते हो 6 months की leaves को. Yeah, but what is like कितने revisions करते हो, इस पे कई लोग का बहुत ज्यादा फोकस रहता है. कि like फ्रेंड्स को कॉल कर रहे हैं, कितने सब्जेक्ट हो गए, मेरा तो फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट हो गया, तो कौन से सब्जेक्ट में पहुंचा. तो मैं बोलूंगा कि the number of revisions does not matter. In fact, I would want to say that the quantity of hours you put in does not matter, but the quality of hours you put in matters. Exactly. Obviously, वो 6 months important होते हैं, लेकिन वो 6 months में आपका mental state और जो flow है and जो positive मतलब environment है उसको maintain करना is very important. अगर आप सोचोगे वो 6 महीने में मतलब दिन रात मतलब आप 15 घंटे इवन आप सिटिंग करते हैं ना टेबल में, तो इट्स नॉट नेसेसरी. आपको हो सकता है कि 6 hours प्रोडक्टिव हो,
तो मैं एक ये एक्सरसाइज भी फॉलो करता था, लाइक मैं स्टॉप वॉच रखता, स्टॉप वॉच नहीं, मोबाइल ही रखता था, मोबाइल में स्टॉप वॉच ऑन कर लेता था, एंड मेरा 1 सेकंड भी ध्यान भटकता था ना, मतलब किसी का मैसेज आ गया व्हाट्सएप में, उसको भी खोला, तो उसमें भी आई यूज्ड टू पॉज दैट स्टॉप वॉच। तो ये मैंने एक्सरसाइज जब फर्स्ट रीडिंग में की, तो मैंने आई फाउंड आउट कि 10 घंटे भी बैठता था मैं, तो इफेक्टिव आवर्स केम ओनली टू 6 आवर्स। Okay. हाँ, so it is very important to measure and track your productive hours and not your sitting hours. You can sit all day in a chair, मतलब 18 घंटे आप बैठ जाओ, लेकिन आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं निकल रही। So that is very important कि आपके कितने productive hours है, कब आप अच्छे से पढ़ रहे हैं और पूरे अच्छे मूड से पढ़ रहे हैं, something is going inside your head. So that's very important. And that is only possible when you have a positive mind. मतलब अगर आपका positive state है, environment का, आप खुश हैं, सब चीज हो रही है, then it is only possible. And Rama, your original attempt was in May, and you gave your exams in January. तो वो कितना tough था उस period को handle करना mentally? मतलब a movie can be made of that period, I believe. और ये मेरे को लगता है एक सबसे स्पेशल अटेम्प्ट है, ऑल इंडिया रैंक 1 इन जनवरी 2021. राइट, तो सब में मतलब जब शुरुआत में तो 15 डेज पोस्टपोन हुई थी एग्जाम कोविड आने के बाद, तब तो सबके सब खुश थे। 15 दिन मिल गए, थोड़ा सा जो छूटा हुआ था वो सब कवर हो जाएगा। लेकिन जब वो पोस्टपोनमेंट का साइकिल बिगिन हुआ, 15 डेज टू 1 मंथ, 1 मंथ टू 2 मंथ, देन कैंसलेशन, देन फिर नवंबर में भी आई कुडंट अटेम्प्ट ड्यू टू मतलब हेल्थ इश्यूज एंड ऑल, सो आई हैड टू ऑप्ट फॉर जनवरी 21 अटेम्प्ट। तो नवंबर 20 तक अटेम्प्ट तो लाइक यू आर फ्रस्ट्रेटेड, लिटरली फ्रस्ट्रेटेड, मतलब बुक देखने का मन ही नहीं करता था। तो उस समय मैंने क्या किया, अपने स्टडी आवर्स रिड्यूस कर दिए। मेरे को तो नहीं लगता कि anybody in India is like that कि जो पूरे टाइम कंसिस्टेंटली पढ़ रहा था, it is not quite humanly possible. Environment भी ऐसा था, and you can't keep on reading the same thing again and again and again. So what I did was take up some activities, like be it anything, like taking up my hobby, like I tried to learn to play guitar, मतलब मैं YouTube में वीडियोस देखता था कुछ फैशन के, समथिंग एंड ऑल, को ट्रेडिंग की मैंने, कुछ किया। मैंने स्टडीज को स्टॉप नहीं की, लेकिन आवर्स रिड्यूस कर दिए। तो दैट वाज मतलब ऐसे मैंने नवंबर तक का पीरियड निकला। देन नवंबर में जब मैं नहीं दे पाया, तो इट वाज अ वेरी बिग थिंग फॉर मी। मतलब नवंबर 20 में मेरे सारे फ्रेंड्स ने दे दी थी एग्जाम। तो नवंबर 20 से जैन 21 का जो पीरियड था, मतलब दैट वाज क्वाइट फ्रस्ट्रेटिंग, वेरी डिप्रेसिंग सॉर्ट ऑफ पीरियड फॉर मी, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी स्टडी पैटर्न ऐसा होता है कि मैं 6-7 घंटे पढ़ लिया खुद, लेकिन 1 घंटे कॉल में जाते थे मेरे, मतलब एज इन डिस्कसिंग विद फ्रेंड्स या फिर कुछ भी डाउट्स वगैरह। तो जब सारे फ्रेंड्स ने नवंबर 20 में एग्जाम्स दी थी, तो जैन 21 में काफी एकदम पे गया था मेरा अंदर का ब्रेन। तो मैंने फिर सोच लिया कि मल्टीपल रिविजन्स तो हो नहीं पाएंगे, तो मैंने सोचा कि 1 रिविजन इज इनफ। तो फिर मैं मिड दिसंबर से वापस पिकअप किया था। सो आई स्टार्टेड, मतलब वापस मेरा 1 रिविजन कंप्लीट हुआ, एंड देन आई गेव एग्जाम्स इन जैन 21। इनफैक्ट मतलब जिस मूड के साथ मैं एग्जाम्स देने गया था ना, तो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग अ रैंक एट ऑल। मतलब मैं तो सोचा कि हाँ पास होना है, ठीक है, पास होने में मैं सेटिस्फाइड हूँ, बस आई जस्ट हैव टू गेट ओवर विद इट, मतलब ये हो जाए बस, बहुत हो गया। 1.5 साल से यही कर रहे हैं, बट ऑब्वियसली देन ऑल इंडिया रैंक 1 came and everything changed. Great. Wonderful journey. So Brahma, I wanted to ask a very specific question. मैंने आपका प्रोफाइल विजिट किया था लिंक्डइन पे, एंड आई फाउंड आउट कि आपने बहुत सारे नेशनल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड किए हैं जो आईसीआई के थ्रू कंडक्ट होता है. आई रियली वांट यू टू एक्सप्लेन कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या इंपॉर्टेंस है, एंड ये एक ऐसे सीए स्टूडेंट को जिसने कभी कॉलेज नहीं किया है, या फिर जिसने आर्टिकलशिप बिग फोर से या फिर किसी बड़ी कंपनी से नहीं की है, उसको कैसे हेल्प करता है अपना पर्सनैलिटी बिल्डअप करने में. Thank you so much, Duman, for pointing this out. I don't know how I missed this point during my CA journey. मतलब it is like national conferences are, I believe, are a gem of ICI. मतलब वो जो period था ना, the 3 conferences I attended, like it was like over the top, too awesome. So basically मेरे को national conferences के बारे में पता चला जब first national conference हुई in रायपुर itself. मतलब रायपुर में national conference हुई थी, तो उधर मुझे जानते थे मेरे सर लोग वगैरह, तो they said कि present a paper. तो जब मैंने उधर पेपर प्रेजेंट किया, फिर मुझे पता चला नेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती क्या है. सो दोज हु डोंट नो, मतलब आईसीआई, बीओएस ऑफ आईसीआई ऑर्गेनाइजेस स्टूडेंट कॉन्फ्रेंसेस, तो सीए स्टूडेंट कॉन्फ्रेंसेस, एंड ईयर में 2-3 नेशनल कॉन्फ्रेंसेस भी होते हैं. दे बोथ आर सेम, बस मैग्नीट्यूड में डिफरेंस होता है. तो उसमें any student can apply, including IPCC student can send their papers. तो बेसिकली इंस्टीट्यूट की वेबसाइट में आप अनाउंसमेंट्स में देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कहाँ का कॉन्फ्रेंसेस हो रहा है. उसमें देयर आर सम टॉपिक्स, 7 to 8 टॉपिक्स होते हैं, और सब्जेक्ट वाइज टॉपिक्स होते हैं. तो एनी स्टूडेंट कैन प्रिपेयर अ पेपर, मतलब उस टॉपिक पे आपको अपना खुद का राइटिंग लिखना है ना, एज इन टेक्निकल पेपर लिखना है, एंड यू सेंड इट टू इंस्टीट्यूट, एंड दे सिलेक्ट यू, मतलब फिल्टर करते हैं वो, फिर सिलेक्शन होता है. तो देन इफ यू आर सिलेक्टेड, देन यू गेट अ कॉल,
and you go to that city to present a paper. So everything is like bond by institute. You just have to go there, present a paper, and have fun. So basically, obviously, these national conferences are too knowledge filled. मतलब specifically तुम्हें एक public speaking platform मिल रहा है, तो I think कि वो बहुत ज़्यादा important है. Like apart from MCS and ITT, इतना बड़ा platform CA students को नहीं मिलता है. So national conferences are like perfect opportunity for public speakers. And मैं स्कूल से थोड़ा मतलब public speaking में आगे रहा हूँ, so मुझे काफी अच्छा लगता था. And apart from knowledge, जो connection बनता है आपका उधर, like 10 to 15 students आते हैं from all over India, students come. जो connection आता है, there are like lifelong connection. मतलब I have very truly dear friends. मतलब अभी तक जो मेरे friends हैं from that period itself. So I presented a paper in Raipur, in Chandigarh, and Guntur, and I bagged the best paper presenter award in all the 3 conferences. And I have made some truly beautiful friends there. So national conferences are like everything. मतलब छोटू सा college है वो, तुम्हारा छोटू सा MBA college, 4 दिन का. Thank you so much for putting this out, Brahma. मैंने मतलब मैं really चाहता था कि आप एक बार बताओ national conference का importance क्या होता है. So now, Brahma, coming on your future aspiration, मतलब future में क्या plans है, अब क्या करना है, rank आ गई, CA final हो गया, next क्या? So basically मैंने जैसे बताया कि मेरा जो इंसेप्शन था CA लेने का, जो वो था मतलब रीजन था, वो चेंज हो गया ड्यूरिंग द जर्नी. तो समवेयर मुझे पता था कि प्रैक्टिस करनी है ऐसा था, लेकिन आफ्टर जॉइनिंग किया चड्डा इन कंपनी मुझे लगा नहीं, जॉब इज आल्सो गुड, द कल्चर, द एनवायरनमेंट एंड द क्वालिटी ऑफ वर्क यू डू देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो और मेरा ना IPCC के बाद से लॉ में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है. मतलब आई एम टू मच इनटू इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, बी इट कंपनी लॉ, डायरेक्ट टैक्स और एनीथिंग. सो आई थिंक मुझे फ्यूचर में लिटिगेशन रोल अगर मुझे कोई अच्छी कंपनी में मिल जाए तो आई विल गो देयर. बट डेफिनेटली मेरी रैंक भी आई है. So when you get a rank in CA finals, there are some companies, be it in FMCG sectors or any other sectors, they have special leadership programs specifically for rankers or management training programs. So उसमें क्या होता है, you are rotated 2 months में आपको different stints पे rotate करते हैं, and then according to vacancy and according to your performance, कि किस stint में आप best perform किए थे, then you place there. मतलब basically they are grooming you to be future CEOs of the company. So 2 of them are very famous. Aditya Birla Group and this leadership programs. Yeah, HUL, ABG, and ITC. In fact, RB Group has also a good leadership program. So I'll be targeting these companies and see if I can go there. And also, I've been searching this management consultancy firms like McKinsey and Bryan. So, but I don't know much about it. So I have yet to research about them. Or अगर उधर सही लगा, so I'll go. So I have these 3 career paths in my mind as of right now. Yeah. So, Brahman, it was a wonderful conversation. I really want any last advice from your side for all the students जिनको exam face करने में काफी difficulties face हो रहे हैं या फिर जिनके attempts लग रहे हैं. Any last advice from your side? So basically, I would say that what I've seen is that everybody is like CA is a sacrificing course. मतलब all it involves is sacrifice, hard work, and then hard work pays off. But I would say that change your state of mind. अगर आप सोचेंगे कि you are making sacrifices, या मैं इधर नहीं जा पा रहा, या मैं उधर नहीं जा पा रहा हूँ, so even while doing that sacrifice, you won't be focusing on your studies. So first of all, I would say change your state of mind. मतलब कुछ obviously CA demands some sacrifices, लेकिन ऐसा नहीं है कि CA में सिर्फ sacrifices है. There are मतलब बहुत सारी चीजें हैं CA में. मतलब as far as up to after achieving this fit, when I look back, I can't remember any of my hardships. मतलब आप कुछ भी फेस बोल दीजिए मुझे, be it articleship, be it studies, तो मुझे उसके सिर्फ अच्छे मोमेंट्स याद आते हैं. तो इस कोर्स का लोड मत लीजिए. Enjoy your studies, make your studies interesting, and the most important thing of all, believe in yourself. Don't run for guidance. इससे पूछते हैं कैसे करना है, टीचर से पूछते हैं क्या करना है. You are your own master. The strategy you make for yourself is best, and you know yourself best, and you know your study pattern best. So I would say that believe in yourself. And जब आप एग्जाम हॉल में एंटर करते हैं तो आप ऐसे सोचते हैं कि you are already a CA. So I believe that you can achieve success. Definitely, everything will come your way. That was a wonderful advice, Brahma. Okay, Brahma, thank you so much for coming on the channel. Once again, thank you so much. Thank you so much, Dhuman, for having me here and for
letting me interact with the students.